कि जैसे मेरे बेटे की क्लास में एक हुआ था इस तरह का सीन किसी और के साथ, तो वो उसने पहले मुझे नहीं बताया खुद से, बट देन आई फाउंड आउट थ्रू द व्हाट्सएप ग्रुप, जो मदर्स का ग्रुप होता है. You know, like if you ask your son to stand up for somebody else, even if it puts him into trouble. देखो, I believe कि you do what is right. Okay. If you think कि उस बच्चे को फायदा होगा आपके सच बोलने से, then you have to stand for him. Yeah. Oh, after my kids? Yeah. Oh no, not at all. There was no guilt. Guilt कभी कभार थोड़ा बहुत होता था, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं था. Because I believe कि आप बच्चों को जिस तरह से ट्रेन करते हैं, बच्चे उसी तरह से ग्रो करते हैं. Hello everybody, Assalamu alaikum. My name is Zara Noor Abbas Siddiqui and I welcome you all to another exciting episode of Can Baby Presents What Mom Sends. So the person who's sitting next to me right now is not only a brilliant model, but she also transitioned from a beautiful model to a very good actor. Not only that, she's a mother of 2 beautiful kids. And वो वाली अम्मा नहीं है जो हम टीवी पे देखते हैं, जो डराती हैं, old school वाली अम्मा. She's the chic contemporary amma that everybody wants. Trust me, her kids are very, very excited about her. Please put your hands together for Sunita Marshall. Yay. Hey. Yes. How are you? I am good. Thank you so much. That was a lovely introduction. Of and course. I really don't know if I'm that chic mom. You are, because I was going through your Instagram and I was like, I need to know, मुझे थोड़ी research करनी है, how is she like? And you were very cool and with your kids and everything was very, क्या कह सकते हैं आप, refreshing and very, very chic. And very playful. मुझे ऐसा लगा जैसे your kids would be very happy to have a mother like you, जो अपने आप को इतना fit रखती है. To be very honest, because it's very important to be the role model for your kids and to be happy within yourself. Yeah. How do you do it? I don't know. That's a tough question to ask. I think every person is a different person. Yeah. And I'm just myself. That's how I am. Maybe I have a very positive nature. You do. And I'm very calm. हाँ, तो वो उससे भी फर्क पड़ता है. And I try to listen to my kids. So, Which is very difficult nowadays. It is, yes, sometimes it is. Because sometimes when you're tired, you're back from your work and you don't really want to have, you know, that certain kind of conversation. Yeah. और आप कभी कभार चिढ़ के भी जवाब दे देते हैं. But I try my best कि जितना मैं उनसे बात कर सकूँ मैं. You have a teenager boy now, right? Yes, 13. So, oh, mashallah, mashallah. So, like, अब वो उसकी एक और ही जिंदगी की transition होगी. अच्छा, अभी तक जितना मुझे लोगों ने डराया हुआ था कि जब टीन्स शुरू होंगे तो ये हो जाएगा और वो हो जाएगा, अभी तक it's not that bad. Okay. हाँ, अभी तक मुझे ऐसा लगता है कि he do listens. कभी कभी होता है कि वो प्लीज वाला सीन आ जाता है कि प्लीज लेट मी गो टू विद माय फ्रेंड्स. लेकिन वो भी फिर वो एक सर्टन फिर हम लोग टाइमिंग सेट कर देते हैं कि अच्छा ठीक है, इफ यू आर गोइंग गो फॉर मे बी 2 hours or 3 hours मैक्स एंड देन बाय दिस टाइम यू हैव टू बी होम. अब जैसे एक पुरानी वाली चीज़ें ही है, जैसे लोग कहते हैं मगरिब पे घर आ जाओ, तो हमारा भी ये है कि इफ यू आर गोइंग टू द पार्क आउटसाइड विद योर फ्रेंड्स, यू हैव टू बी होम बिफोर मगरिब. So वो सब चीजें हैं. rules and boundaries set in the house. हाँ, वो सब है. अच्छा, who is like the ground-breaking rule breaker parent? You or your husband? जो rules तोड़ देता है. I think दोनों कभी कभार I don't know, किसी एक का नाम I don't know, क्योंकि what do you guys do? Like what the rule? You know what happens is my daughter, if she is going out and I've told her कि भाई you have to be back at this time, तो वो क्या करेगी वहाँ जाके, she will not call me कि मुझे 1 घंटा और रुकने दें. She will call her father. Yeah, किस इजाज़त वहाँ से मिल जाएगी. तो वो फिर हसन को बोलती हूँ कि भाई तुम क्यों सुनती हो उसकी, जब मैंने मना किया था. Yeah. और बेटे का ये है कि he calls me. कि यहाँ से इजाज़त. So इसका मतलब ये सच बात है कि जो बेटियाँ होती हैं वो अब्बा के ज़्यादा करीब होती हैं and बेटे जो हैं वो माँ. हाँ, I think ये एक natural एक चीज़ है. Are you best friends with your daughter or you think parents can't be best friends? अच्छा, best friends, I wouldn't say best friends. Because a best friend is someone who you share each and everything with. Yeah. लेकिन with parents,
वो आप जितने मर्जी उनके साथ फ्रेंड्स बन जाएं, जितना मर्जी आप ओपन रिलेशनशिप हो आपका बच्चों के साथ, लेकिन वो एक उनके जहन में ना एक छोटी सी चीज़ आती है कि नहीं ये हमारे पेरेंट्स हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो शायद मुझे अपनी एक एक चीज़ नहीं बताते होंगे। सो बट दैट्स फाइन, दैट्स ओके। थोड़ी बहुत अगर बीच में एक है भी तो वो एक रिस्पेक्ट की बाउंड्री है। दे रिस्पेक्ट द फैक्ट दैट वी आर देयर पेरेंट्स। तो ये वाली बात हमने इनसे नहीं करनी है। लाइक ऐसी एक चीज है जो हमने सिर्फ दोस्तों के साथ ही करनी है। यू नो आजकल की लैंग्वेज अब जैसे देखिए ना, आजकल पेरेंटिंग भी बहुत बदल गई है। और जिस स्टेज पे आप एज अ पेरेंट हैं वहां पर तो बच्चों की ये उनका एक्सपोजर और मीडिया और टिकटॉक और सोशल और दोस्त भी, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, इवन स्कूल्स भी अब बहुत डिफरेंट हो गए। डू यू गाइज हैव लाइक ओपन कॉन्वर्सेशंस इन द हाउस? We do. Like if somebody likes somebody. I ask this on a regular basis. Very actually. nice. Yeah. मैं अपनी बेटी से भी और बेटे से भी। And bullying के ऊपर कभी बात होती है? बुलिंग का भी मैं पूछती रहती हूँ। वो कभी अगर उन्होंने बताया, अभी तक शुक्र है they've never told me कि उनको किसी ने बुली किया है या नहीं किया है। लेकिन उनकी जैसे मेरे बेटे की क्लास में एक हुआ था इस तरह का सीन किसी और के साथ, तो वो उसने पहले मुझे नहीं बताया खुद से, बट देन आई फाउंड आउट थ्रू द व्हाट्सएप ग्रुप, जो मदर्स का ग्रुप होता है, एंड देन आई आस्क्ड हिम एंड देन ही टोल्ड मी कि हाँ इस तरह की कोई चीज हुई थी। तो उस वक्त मैंने उससे भी पूछा कि आपके साथ भी कभी ऐसी चीज हुई, तो डोंट कीप इट टू योरसेल्फ, जस्ट यू नो come up to me or come up to you know ask your teacher about it, but you should know about these things कि भाई अगर कोई बुली हो रहा है तो you cannot just stay quiet and you stand up for them. हाँ, of course I have to, even if it puts you in trouble. या देखो आप अपने बच्चों के लिए इतना तो करते हैं ना। No, like you ask your son to stand up for somebody else even if it puts him into trouble. देखो I believe कि you do what is right. Okay. If you think कि उस बच्चे को फायदा होगा आपके सच बोलने से, then you have to stand for him. तो वो एक only then I think as a community we will be able to grow. Exactly. वरना सब अपने अपने उसमें लगे रहे और फिर आप नाइंसाफी को देखते ही रहे। तो आप इग्नोर नहीं कर सकते इन चीज़ों को, और ये चीज़ें आपने बचपन से ही बच्चों के माइंड में डालनी होती हैं। बचपन की अगर हम बात करें, you just told me that you started working very early on. Yes. Right after. Yes. Guilt, pressure, society, वो सब फील नहीं हुआ? How did you go back to work? Oh, after my kids? Yeah. Oh no, not at all. There was no guilt. Guilt कभी कभार थोड़ा बहुत होता था, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं था, because I believe कि आप बच्चों को जिस तरह से ट्रेन करते हैं बच्चे उसी तरह से ग्रो करते हैं। मुझे लगता है कि आफ्टर गिविंग बर्थ, ठीक है, आप थोड़ा बहुत टाइम आप घर पे गुजारते हैं, इफ़ यू नर्सिंग एंड एवरीथिंग एंड ऑल, उसके बाद यू शुड स्टार्ट वर्किंग, बिकॉज आपके बच्चों को उसी तरह आदत पड़ेगी। अगर आप बाद में काम करना शुरू करेंगी, आपका बच्चा उस वक्त ज़्यादा शौक में चला जाएगा कि मेरी माँ जो 24 घंटे मेरे साथ घर पे होती थी अब अचानक से गायब क्यों हो गई। वो ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक चीज़ है। जब वो छोटे होंगे ना, उनको आदत हो जाएगी कि अच्छा मामा बाबा ऑफिस जाते हैं, क्योंकि हम तो उनको ऑफिस बोलते थे, उनको शूट का तो समझ नहीं आता था, तो हम कहते थे हम ऑफिस जा रहे हैं। तो वो आते थे, किच्छी देते थे, हग करते थे, ओके बाय बाय, और फिर हम रात में आते थे, हम मिलते थे, हम सो जाते थे साथ। तो उनको आदत हो गई। हाँ ठीक है, कुछ टाइम था व्हेन दे यूज्ड टू क्राई और मुझे छुप के भी निकलना पड़ता था, दैट वाज अ वेरी डिफिकल्ट टाइम, लेकिन देन अगेन उनको आदत हो गई उस चीज़ की। बट डू यू थिंक, जैसे लोग कहते हैं कि यार इसके बदतमीज़ बच्चे हैं बहुत ज़्यादा, और ये तो क्योंकि माँ काम कर रही है ना तो फिर बदतमीज़ ही होंगे बच्चे, हाउ डू यू टेक ऑन BSS like this? ओके, सो मुझे कभी इस तरह का सुनने को मिला नहीं, और दूसरी ये कि मेरे बच्चे वाकई बहुत ही सीधे बिल्कुल ही बदतमीज नहीं है, लेकिन हाँ ज़रूर हमने भी ऐसे बच्चे सुनने को मिलता है, मगर हम रॉन्ग, ऑफ कोर्स इट इज़ रॉन्ग, हमने भी ऐसे बच्चे देखे हैं जो हमें लगता है कि यार ये बच्चा कितना बदतमीज है, लेकिन हम कभी भी पेरेंट्स को नहीं ब्लेम कर सकते। सो यू नो इट ऑल्सो पार्ट ऑफ योर एजुकेशन कि आप अगर बच्चा, हर बच्चा डिफरेंट है, कोई बच्चा नोटी है, कोई बच्चा शाय है, कोई बच्चा बिल्कुल खामोश है तबीयत उसकी, सो यू कांट जस्ट ब्लेम द पेरेंट, वो तो हमारी सोसाइटी ऐसी है। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता एजुकेशन और अवेयरनेस ये सब चीज़ें बढ़ रही हैं, तो उससे मुझे लगता है कि कुछ फ़ायदा हो रहा है, कुछ लोगों को पता चल रहा है कि हाँ भाई यू कैन नॉट, और स्पेशली मदर्स, हमारे यहाँ सबसे पहला जो ब्लेम है वो मदर पे जाता है कि हाँ माँ ने नहीं सिखाया, माँ ने ये नहीं बोला करने को,
भाई सिर्फ माँ ही तो नहीं होती ना घर में, आपके घर आई थिंक फैमिली में दादी, नानी, एग्जैक्टली सब होते हैं। अब बाप का तो कभी कोई बोलता ही नहीं। हाँ, यूजुअली आई थिंक हमारी सोसाइटी में इट्स ऑलवेज द मदर एंड इट इज ऑल्सो become very easy to target a mother. But now, do you think that fathers have also changed? Yes, this entire society is changing. Yeah. अब जैसे अब क्या होता है हसन घर में, like Sunday को मेरे यहाँ कोई help नहीं होती. There's no house help at all. Really? So after lunch, dishes हसन करता है. और ऊपर हमारा एक छोटा किचननेट है, उसके dishes भी हसन ही करता है. Wow. तो उससे फायदा क्या है, जब बच्चे देखते हैं कि हमारा बाप ये कर रहा है, तो बड़े होके जब उनकी भी शादियां होंगी तो उनको ये चीज अजीब सी नहीं लगेगी। उनके लिए एक बड़ी नॉर्मल सी चीज होगी। Such a brilliant thing. हसन ने बहुत सारी चीजें अपने घर में जो उसके नॉर्म्स थे वो ब्रेक किए। Okay. You know, talking as a father, as a man of the house also, after his father, मतलब father तो है, मगर वो हमेशा बहुत strict रहे हैं। तो हसन ने उसको बिल्कुल opposite कर दिया कि अगर उसकी अम्मी और अब्बू जो हैं वो house help को डांट रही हैं, तो हसन would be the one जो कि pacify करेगा। तो ये सब चीजें से फायदा ये होता है कि बच्चे बहुत सीखते हैं। So you have actually turned your life according to them. हाँ, I have to. I mean, not me, like every mother. अपना थोड़ा बहुत तो चेंज करते हैं, राइट? बट फिर ये बहुत सेल्फलेसनेस नहीं है। फिर आप देखिए, नहीं, आप अपने लिए भी तो टाइम निकाले ना। ऐसा तो नहीं है कि आप छोड़ दें। आप 24 घंटे बच्चे को नहीं दे रहे, फिर उसमें गिल्ट है। नहीं, तो आप गिल्ट ना लेना। आप थोड़ा सा तो स्ट्रॉन्ग बने। आप इतना कमजोर नहीं होती औरत। ये मल्टीटास्किंग अल्लाह मियां ने औरतों को ही दी है। So they're the ones who can handle all of this stuff. So we're the ones who can raise our kids, we are the ones who can work, and we're the ones who raise these humans to be humans. So we are very strong. तो ये मत बोलें कि हम हर वक्त गिल्ट में होते हैं, नहीं होते। आप जितना बोलेंगी आपको साइकोलॉजिकली उतनी ही गिल्ट फील होगी। So don't say it. Just think positive and stay positive. That's what I do. बल्कि मैं तो जब बच्चे छोटे थे and I used to go to Lahore for my fashion weeks, which means 5 days. तो 5 days मैं कहती थी ये मेरी छुट्टी है, ये मेरी break है। Nice. Yeah, that's my time, that's me time. I'm going to enjoy there. मैं every day बच्चों से बात करती थी वीडियो कॉल पे, but those 5 days, और मेरे बच्चे इतने used to हो गए थे उस चीज के, और उनको पता था कि अच्छा अभी तो 1 day हुआ है, अब 2 days हो गए, अब 3 days हो गए, अब 4 days हो गए, अब 5th day mama is going to be back. Is Hassan the one who goes to pick them up from school? Okay, ये क्या है होता है कि if we're both busy, तो हम मेरे father-in-law जाते हैं। I heard this. और अगर मैं बिजी हूँ तो हसन जाएगा, हसन बिजी है तो मैं जाऊंगी। This is such a beautiful dynamic in South Asian families. और हमारा शुरू से जब वो छोटे थे, जब मेरे फैशन वीक होता था तो हमारी चूंकि 2 months पहले डेट्स आ जाती हैं, तो आई यूज्ड टू टेल हसन कि ये वाली डेट्स तुम ब्लॉक कर लो, तुम अपनी शूट्स मत रखना इन दिनों में। Okay. और फिर इसी तरह हसन की कभी इस तरह की शूट्स आती थी तो वो मुझे पहले से बता देता था कि भाई मेरी ये वाली डेट्स आ रही हैं, ये डेट्स ब्लॉक कर लो। मुझे तो असद ने कहा कि मैं जब नूरे जहाँ जाएगी स्कूल तो उसको मैं ही पिक करने जाऊंगा। I was like, that's so sweet, असद। He's like, हाँ ना, क्योंकि फिर हमारे टीचर्स होंगे तो वो कहेंगे अच्छा कितना। तो मेरे हस्बैंड का तो वो शौक वेट कर रहा है कि जिस दिन वो स्कूल जाएंगे तो। बट आई थिंक इट्स अ ब्रिलियंट डायनामिक। अच्छा, गर्ल डैड्स एंड बॉय मदर्स एक बिल्कुल और किस्म की पोजेसिवनेस, मोहब्बत होती है। What do you think is one thing that you are a little jealous of between your daughter and your husband? कि यार ये वाला बॉन्ड मेरे साथ नहीं करती। नहीं, हमारा ऐसा नहीं है। वो शी इज कोई ऐसे इक्वली अटैच्ड। वो कभी कभार ये लोग क्या करते हैं, ये दोनों एक साथ हो जाते हैं और मेरे अगेंस्ट जो है ना कभी कभार बात करते हैं, मगर थोड़ी देर के बाद वो फिर वैसी हो जाती है। ओ माय मामा, शी इज द क्यूटेस्ट एंड शी इज नंबर 1, यू आर नंबर 2। वो मतलब वो इतना वो उसका वो होता है कि यू कांट रियली टेल कि भाई ये सिर्फ अपने बाप से ही प्यार करती है, ऐसा नहीं है। तो अच्छा, my son, he is a little sensitive. Okay. वो मेरे से सबसे ज़्यादा क्लोज है।
अच्छा हाँ। तो वो हर बात आके बताता है? वो मुझे तकरीबन नहीं, हर बात तो आके नहीं बताता, हाँ, लेकिन मगर वो जो भी उसको बात करनी होती है he will come to me and talk to me rather than going to his father. Yeah, because वहाँ से पता है कि डांट भी पड़ सकती है। हालांकि हसन डांटता नहीं है लेकिन आई थिंक वो एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है कि बाप की शायद आवाज़ थोड़ी भारी होती है, तो बच्चे शायद ऑटोमेटिकली थोड़ा सा डर जाते हैं, but otherwise Hassan is a very calm and cool father. You've seen your parents, Yeah. and then you had a beautiful relationship with your father, as you just said कि वो खाना भी पकाते थे. How has that impacted your relationship with the kids? अच्छा, मेरा फादर का पेरेंट्स का ये सीन था कि हाँ, हमने बहुत अच्छे टाइम्स भी देखे हैं, मैंने अपने घर में लड़ाइयाँ भी देखी हैं पेरेंट्स की। Naturally, हर पेरेंट्स की होती है। लेकिन हमारा थोड़ा डिफरेंट है। हसन और मैं वी डोंट रियली फाइट At all? Very abnormal. At all? आर्ग्यूमेंट्स होती हैं, हाँ, लेकिन हमारा कोई वो वाले फाइट्स नहीं खेलते प्लेट्स से कोई बात नहीं। अच्छा, नहीं, हमारी शुक्र है, शुक्र है, ऐसा नहीं होता। और अगर कभी होता भी है तो वी ट्राई कि हम कमरे में जाके लड़ लें, बच्चों के सामने नहीं करें। That's very good. हाँ, तो बच्चों को तो उन पे हर चीज का इम्पैक्ट होगा। हाँ, मुझे लगता है कि हमारी जो जनरेशन है वो जो अपने जो पेरेंट्स को देखा है वो जो गलतियां जो उनको लगता है जो उन्होंने गलतियां की हैं वो कोशिश करते हैं कि हम ना रिपीट करें। तो जैसे अब जैसे मैंने अपने घर में पेरेंट्स को लड़ते देखा, हसन ने अपने पेरेंट्स को लड़ते देखा, सो नाउ वी मेक श्योर कि हम अपने बच्चों के सामने ना लड़े। और फिर मैं अक्सर लोगों से ये भी कहती हूँ कि शो अफेक्शन इन फ्रंट ऑफ योर किड्स to the wife and the husband. Yeah, so we kind of hug each other in front of them so that, you know, we make this thing very normal. This is such a brilliant thing, guys. I think ये बहुत important है because बच्चे वैसे तो मतलब अच्छी लैंग्वेज में कहें तो बच्चे स्पंजेस की तरह होते हैं। मेरे घर में कहते हैं बच्चे बंदर होते हैं तो आप जो इमिटेट करेंगे उसको इमिटेट करेंगे। तो विच इज़ एब्सोल्युटली राइट। आपके बच्चे देख रहे हैं कि आपके हस्बैंड जो है रिस्पेक्टफुल है, आप अपने हस्बैंड का ख्याल रखिए, तो वो आगे जाके इन रिलेशनशिप्स के बारे में कंफ्यूज नहीं होंगे। इफ़ यू हैव द चांस टू से समथिंग टू योर यंगर सेल्फ, कुछ ऐसा जो अब लगता है कि यार मैं ना ही करती या बहुत ज़्यादा कर लेती, आई वुड से कि आई वुड बी मोर कॉन्फिडेंट, मतलब मैं उसको समझाऊंगी टू बी मोर कॉन्फिडेंट। आई वॉज एक्सट्रीमली शाय और बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट थी मैं मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस और होना चाहिए था मेरे में। And would you give this advice to your daughter also? Yes, to everyone, not only my daughter but to everybody, कि इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप बदतमीज़ ना हो, लेकिन इतना होना चाहिए कि आप अपने लिए स्टैंड ले सकें, और इतनी अक्ल होनी चाहिए टू डिसाइड व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। Do you give that power to your children? देखो, एज अ मदर येस ऑफ कोर्स आई डू ट्राई, बट देन अगेन हर बच्चा डिफरेंट होता है। लाइक आई सेड कि माई डॉटर इज़ एन इंट्रोवर्ट, तो उसको मैं कोशिश करती हूँ कि मैं बोलूँ, लेकिन देखें हम अभी जो जनरेशन है ना, आप उनके ऊपर हावी नहीं हो सकते। Absolutely. अगर आपने एक चीज 3 दफा बोल दी तो वो चिढ़ जाएंगे। बिल्कुल, तीसरी दफा ही। हमें तो 10 दफा एक ही बात, हमें तो पूरा साल एक ही बात सुनने को मिलती थी, फिर भी हम कुछ नहीं कहते थे। हाँ, लेकिन अब जमाना डिफरेंट है। This generation needs logic over everything. But which is fine. Really? Yeah. I mean, why not? हमें बचपन में देखो, हमें बचपन में डांट के चुप करवा देते थे, है ना? और हमें कुछ नहीं समझ में आता था कि हमें क्यों डांट पड़ी। अब आप उनको समझा रहे हैं तो एटलीस्ट उनको अक्ल तो आ रही है ना कि हाँ भाई, उनको क्यों मना किया जा रहा है। और उनके इमोशंस जो निकल रहे हैं, पहले बच्चे रिटेलिएट करते थे कि मुझे इन्होंने मना कर दिया, अब मैं और करूंगा। लेकिन अब के बच्चों को जब आप लॉजिक देते हैं तो उनको समझ में आती है कि अच्छा हाँ यार सही कह रहे, समझ में आ रही है कि हाँ भाई क्यों मना कर रहे हैं। तो आई थिंक दैट्स बेटर। अच्छा हुआ है कि ऐसे। और वो जो एक पेरेंटिंग का गैप था, जनरेशनल गैप, वो थोड़ा कम हो गया। अच्छा, फिर हमारी एज के जो पेरेंट्स हैं या जो हमसे बड़े जो हमारे पेरेंट्स हैं, उनको भी ये बात समझनी चाहिए कि अब जमाना चेंज हो गया है।
देखो अब बच्चे गैजेट्स ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, उनकी नॉलेज हमसे बहुत ज्यादा है। मैं अपने वो नेफ्यूज से पूछते रहती हूँ कि बेटा अब क्या, वो मुझे ये गाने बताते हैं कि आज ये ममूशी आ गया है, तो ये कोरियन ये आ गया है। I don't mind. Yeah, my daughter is totally into Korean music. K-pop and BTS. Yes. Which is fine. I would still say it's fine. But then do they listen to Sajad Ali also? No, they do not listen. But that is still okay. Yes, that's fine. Because that is not their cup of tea. They don't like it. They enjoy Korean more. So it's all right. आप बच्चों को इतना, मैं फिर वो बात करूंगी, उनके सर पे इतना हावी मत हो. Do give them their iPads. They also learn. वो बहुत सारी चीजें सीख रहे हैं, उनकी इंटेलिजेंस में इजाफा हो रहा है. आगे जो दुनिया है, अगर आप उनको इन सब चीजों से रोक देंगे, आपका बच्चा बिहाइंड रह जाएगा, पीछे रह जाएगा. बट अब जैसे बुक्स भी नहीं पढ़ा कोई, किसी ने शफाक अहमद नहीं पढ़ा, किसी ने म्यूजिक, you're okay with it? I'm fine with it. I am totally. That's brilliant. Yeah, I'm totally fine with it. मैंने भी नहीं पढ़ा, तो मैं अपने बच्चों को कैसे बोलूँ वो पढ़े? मुझे ये होता है उनका शौक जिस चीज में है वो करें. So, बच्चों के अंदर नॉलेज आप जबरदस्ती नहीं घुसाएं, डालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अब एवरीथिंग इज देयर ऑन गूगल. तो उनको हमसे ज्यादा नॉलेज है. अभी थोड़े दिन पहले मैं और हसन बैठे हुए World War II की वो हिटलर की हिस्ट्री पे डॉक्यूमेंट्री थी, हम वो देख रहे थे, एंड वी वर क्वाइट फैसिनेटेड अबाउट इट, एंड वो बहुत बहुत अच्छी थी. एंड आई कॉल्ड माई सन, उसको मैंने कहा आप नेक्स्ट ईयर आप you'll be in grade 8, तो आप ये देख लो डॉक्यूमेंट्री, तो आपको पहले से ये सब पता होगा. उसने तो मुझे पूरी A to Z डिटेल बता दी. उसने इतनी डिटेल बता दी जो कि उस डॉक्यूमेंट्री में भी नहीं थी. उसको पहले से सब कुछ पता था. मैंने कहा हाउ डू यू नो ऑल ऑफ दिस? उसने कहा यूट्यूब शॉर्ट्स में या गूगल पे आई सर्च. क्यों? क्योंकि उसका इंटरेस्ट है. अब कोई और बच्चा होगा, उसका किसी और सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होगा, तो भाई आप अगर उसको World War II का नहीं पता और उसको उस चीज के बारे में पता जिसमें उसका इंटरेस्ट है, so it's fine. This means that you should not force your kids to become engineers and doctors. Not and let them follow their heart, जिसमें वो succeed करें. Now we go to the fun part of the show, which is called the Can Baby segment. इसमें छोटे-छोटे सवाल हैं आपसे हम पूछेंगे. Where did you go for your last vacation, and what's your favorite holiday destination? Last we went to South Africa. Oh wow! Yeah. Just you and नहीं हम Hassan? नहीं with kids. Yeah. We go once a year. Oh wow! Family holiday, June and July. So is that your favorite destination also? No, favorite destination is always Thailand. I think nothing can beat Thailand. Well, I'm not a shopaholic person, so I wouldn't say shopping, but yeah, shopping is also. Yeah, but Koh Samui is my favorite destination in Thailand. Are you into retail therapy? No, why? I feel like कल से मेरे दिमाग में एक जैकेट अटकी हुई है. मैं कह रही हूँ जब तक मैं वो खरीद नहीं लूंगी, मुझे दुख नहीं मेरा कोई है जो खत्म होगा. लेकिन मुझे ये होता है कि अगर आपका दिल है ना किसी चीज पे बहुत ज्यादा, तो आप ले लें, इवन इफ वो महंगी तरीन है. नहीं, हाँ थोड़ा सा दिमाग भी यूज करें. सिर्फ दिल ही ना ही करें. अच्छा, आप थेरेपी के लिए क्या करती हैं? कुछ नहीं, हसन का दिमाग खाती हूँ. बट वो फिर थेरेपी के लिए क्या करते? वो कभी कभार जाते हैं थेरेपी पे, फिर वो आके मुझे देते थे. मैं सुन के आया हूँ, सीख के आया हूँ. वेरी गुड. अच्छा, व्हाट डज क्रिसमस लुक लाइक इन कराची, एंड व्हिच कंट्री वुड यू वांट टू स्पेशली गो फॉर क्रिसमस हॉलीडेज? कराची में तो थोड़ा फीका ही लगता है. I know. एक्चुअली पहले हर जगह क्रिसमस ट्रीज लगती थी, लेकिन अब नहीं है. खैर मेरे घर में लगता है एवरी ईयर. बच्चे तो बस वेट कर रहे होते हैं कब 1 दिसंबर आएगी, फिर हम उतारेंगे ऊपर से क्रिसमस ट्री, फिर हम लगाएंगे, क्योंकि वो भी पूरा दिन लगता है ना उसको सेटअप करने में. बट व्हिच country would you like to go? Well, definitely London, because my whole family is there. So, or of course, it's extremely pretty. It's beautiful. It's beautiful. Acha, what would you advise moms who have girls who are about to hit puberty, or what's the right way to educate young girls about it? अच्छा, so मैंने अपनी बेटी से since she is 11 now, माशाल्लाह, तो मैंने उससे एक दिन उसको मैंने बुलाया, मैंने कहा sit with me, I want to talk to you about this, and she is like, oh no, please don't, I already know everything about it. I was like, how? तो वो स्कूल में, क्योंकि they educate kids in school. तो वो एक बहुत अच्छी चीज हो गई. Not now, even मेरे टाइम पे, मुझे भी स्कूल में उन्होंने पूरा एक लेक्चर होता है हमारे पूरा, मतलब पता था कि कुछ है, बट इतनी इंफॉर्मेशन अबाउट मूड्स एंड
ये नहीं पता था, हाँ, moods वगैरह का नहीं बताया था, लेकिन अभी तो खैर उसने मुझसे she just refused. हाँ, तो उसने कहा I know everything about it. Okay, but it's great that you wanted to have a conversation about it. हाँ हाँ, वो तो of course I think हर किसी को करनी चाहिए. अच्छा, what would you do if your manager tells you that you cannot ever repeat an outfit on TV or social media? First, I do not have a manager. That's why it was so Second, such a piece to have you on the show. Second, I would never have a manager, no matter how famous I become. Or third, I like doing things on my own. Okay. मतलब हसन का एक पर्सनल असिस्टेंट है जो उसके कपड़े वगैरह रखता है. But that's also not a manager. हाँ, वो भी मैनेजर तो नहीं है of course. मगर मेरे पास वो भी नहीं है. मैं अपने कपड़े खुद रखती हूँ. मैं एवरी डे अपने ड्रामे की कंटिन्यूटीज खुद निकालती हूँ. मैं एवरी डे फिर जो कंटिन्यूटीज यूज हो जाती हैं उनको वापस रखती हूँ, तय करके रखती हूँ. और नहीं, लेकिन आप तो बर्तन भी आप लोग खुद धो रहे हैं, तो ये बहुत ज्यादा हो गया. मैं बर्तन नहीं धोती. हाँ, कभी कभार. हाँ, नाश्ते के, अगर संडे वाले दिन नाश्ते के बर्तन मैं धोती हूँ. ये ज्यादा. आई वांट टू गिव यू अ मैनेजर और हाउस वेल. नहीं यार, मैनेजर को कौन संभालेगा? हाँ, उसके भी होते हैं. हाँ, बहुत सारी चीजें. अच्छा, if your kids want to start a YouTube show which is so unlike my kids. हाँ, your kids exactly. What question? Knowing her kids after this question. एक दफा किया था मेरे बेटे ने. So मेरे बेटे के हम जहाँ रहते हैं, so it's a gated community. I would say more like an affluent neighborhood. Okay. So उधर 4 उसके दोस्त हैं. उन लोग ने एक दफा कहा. How old was he? They're सब एक ही एज के थे. I think 8 or 9. Yeah. तो उन्होंने कहा कि हम YouTube चैनल बनाएंगे. I'm like, okay, बनाओ. अच्छा, तो उन्होंने एक वीडियो बनाई, फनी वीडियो. अच्छा. और वो बहुत अच्छी थी. बहुत अच्छी थी. क्या कंटेंट क्या था उसका? कंटेंट तो वही था, स्टूपिड सा. वो एंड में जो माँ बनी हुई होती है वो उस बच्चे को मारती है. अच्छा. और इस तरह का कुछ कंटेंट, लाइक फनी कंटेंट, बट इट वाज रियली नाइस. सो मैं बहुत हंसी उसके ऊपर. मैंने कहा अच्छा, ये तो बहुत अच्छा है. मैंने कहा चलो एक और वीडियो बनाते हैं, शायद आपके व्यूज और बढ़े. मैंने अपने सारे ग्रुप्स में भेजा कि मैंने कहा मेरे बेटे ने और उसके फ्रेंड्स ने मिलकर वीडियो बनाई है, तो प्लीज फॉलो दिस चैनल. उसके बाद जब मैंने बनाई वो इतनी बुरी बनी इतनी बुरी, तो मैंने कहा भाई आप लोग खुद ही बनाए. हाँ. लेकिन खैर फिर उन लोग का भी इंटरेस्ट खत्म हो गया. उन्होंने आई थिंक टोटल कोई 5 वीडियोस बनाई, फिर वो इंटरेस्ट खत्म हो गया. आई थिंक वो ग्रो आउट करके. ये कितने मजे की एज होती है ना, 8 to 10 के बीच में, जब ये लोग इस तरह की चीजें. बिकॉज आई नो मेरा नेफ्यू मुस्तफ़ा, उसको हमने 14 अगस्त पे उसने कहा कि मैं झंडियाँ ला रहा हूँ. वो गुलशन में रहते हैं. उन्होंने कहा मैं वहाँ से ला रहा हूँ झंडियाँ और मैं यहाँ आके डिफेंस में बेचूंगा मेरा डबल प्राइस पे. और हमारे घर के बाहर एक स्टॉल लगा, उस पर मेरी सास बैठी हुई थी, मेरे अब्बू लोग से अब वो बैठे हुए थे, मुस्तफ़ा बैठा था. तो क्लाइंट नहीं आए क्योंकि गली में था स्टॉल. तो ये लोग उठ के सारे बाहर सामने चाय वाले ढाबे पे गए. And I enjoyed it so much. And we were all like in the passion of it कि हमने झंडियाँ, हम जो गुलशन से लाए हमने सबने बेचनी है. So I think it's very good to support your kids and their ideas like this. अच्छा जी, what would be an appropriate age in your opinion to allow young girls to use makeup? Because you don't want to let them feel just too obsessed with the looks only. Okay, so my daughter, अगर हम कहीं जा रहे होते हैं तो वो शी डज वो अपनी चैप्स लिपस्टिक निकालती है. वो लाइक कलर्ड ग्लॉस और हल्का सा ब्लश ऑन भी लगाती है. शी इज 11 एंड आई एम फाइन विद दैट. हाँ, अगर इस एज पे वो प्रॉपर को आई लाइनर लगा रही है और प्रॉपर कोई फाउंडेशन लगा रही है. वुड यू अलाउ हर टू डाई हर हेयर पर्पल? ओके, नो. क्योंकि मैं शायद इस तरह की नहीं हूँ, मुझे नहीं पसंद होगा और उसको खुद को भी नहीं शायद पसंद, क्योंकि उसने मुझसे कभी नहीं बोला. लेकिन अगर वो कभी बोलेगी भी तो मेरा पहला आंसर होगा नो. और सेकंड, अगर वो बहुत ज़्यादा जिद करेगी तो आई माइट अलाउ हर टू try it out, like just one strand and just go about it और देखें उसको खुद को कैसा फील हो रहा है. Is that a conscious effort from your side to? देखो, मैं अपने नेचर के हिसाब से ही उनसे बात करूंगी, राइट? तो मैंने कभी भी अपने बाल कभी ग्रीन या पर्पल वो इस तरह नहीं किए. पर्पल किए मगर वो फुल 1 टोन कलर जो होता है वो किया है. लेकिन कभी भी वो रेड स्ट्रैंग्स वो इस तरह से मैंने नहीं किए. मे बी शायद मेरी पर्सनालिटी नहीं है वैसी, मुझे नहीं पसंद.
अगर उसको पसंद है तो शी कैन ट्राई इट आउट, लेकिन ये बहुत छोटा फेज होता है जो कि खत्म हो जाता है। तो इसलिए उनको जरूरी नहीं है कि आप बहुत बुरी तरीके से डांट दें और उसको ना करने दें। अगर वो बहुत ज्यादा जिद कर रही है तो करने दें, ट्राई, क्या है, 1-2 साल करेगी फिर छोड़ देगी। मेरा ये फेज अभी नूर जहाँ के पैदा होने से पहले आया था। मेरी अम्मी ने भी उन्होंने भी कहा कर लो बेटा एक दफा, बट मेरी अम्मी तो खुद ब्लू एक्सटेंशन लगा कर ब्लू आईलाइनर लगा के आ सकती है। अच्छा, हैव यू एवर गॉटन स्पेशल ट्रीटमेंट इन एनी प्लेस बिकॉज यू आर अ सेलिब्रिटी? वो तो हम सबके साथ होता है। आई लव दैट पार्ट ऑफ माय जॉब। या तो वो आप थोड़े से एक्साइटमेंट तो होती है। एंड समटाइम्स डू यू लाइक टू overuse that? नहीं, मैंने कभी भी overuse नहीं किया। मतलब मैं कभी भी खुद से जाके किसी को नहीं बोलूंगी कि देखें मैं आई हूँ तो आप मुझे थोड़ी स्पेशल ट्रीटमेंट दे दें। हाँ, वो खुद से दे रहे हैं तो दैट्स डिफरेंट। हाँ, लेकिन मैं कभी खुद से नहीं बोलूंगी। अच्छा, do your kids ever discuss religion with you and how do they participate in your festivals? अच्छा, पहले वो लोग बहुत ज़्यादा करते थे जब छोटे थे, तो उनको उस वक्त इतना समझ में नहीं आता था। लेकिन लेटर ऑन वो खुद ही आहिस्ता आहिस्ता समझने लगे, बिकॉज वो स्कूल में हिस्ट्री में भी बहुत सारे पढ़ते हैं ना। जैसे अभी उनका आई थिंक ग्रेड 6 में दे स्टार्ट विद बुद्धिज्म एंड देन जूडिज्म एंड देन क्रिश्चियनिटी एंड देन इस्लाम, सो दे रीड एवरीथिंग अबाउट इट। सो वो उनको खुद ब खुद इतनी नॉलेज आ गई। लेकिन जब ज़्यादा छोटे थे तो उस वक्त थोड़ा मुश्किल था समझाना, लेकिन हसन उनसे बहुत अच्छी तरह बात करता था। हसन बहुत अच्छा से एक्सप्लेन करता था तो वो समझ जाते थे। अब तो इट्स वेरी इजी। अब तो they know. Yeah, they know. हाँ, they know. It's such a cool thing. वैसे पता है, kudos to you guys to raise children in this relationship. बहुत अच्छी बात है and बहुत अच्छा किया कि उनको confuse नहीं किया. Exactly. Brilliant. अच्छा जी, what's the first thing you ate after coming out of labor or something that याद है labor? Oh my God, that's like 13 years ago. I don't remember मैंने क्या खाया उस। या कुछ याद है कि प्रेगनेंसी में इस चीज़ की बहुत क्रेविंग हो रही थी? अच्छा, विद माई फर्स्ट बॉर्न मैं बहुत खाती थी, लेकिन मुझे किसी भी चीज़ की क्रेविंग एज सच नहीं हुई। Okay. क्रेविंग मुझे कब शुरू हो गई? आफ्टर ही वॉज बॉर्न। सो आफ्टर ही वॉज बॉर्न मैं एवरी डे 2 आइसक्रीम खाती थी। जब मुझे डाइट करने की जरूरत थी उस वक्त मैं 2 आइसक्रीम खाती थी। मुझे भी दिल करता और हसन हर रोज मुझे देखता था और वही लेकर आता था मेरे लिए और मुझे कहता था भाई क्या कर रही हो तुम अपने साथ। मगर वो क्रेविंग मेरी रही फॉर गुड 2 months, 2.5 months। या फिर मैंने छोड़ी जाके। और जो बेटी थी जब बेटी होने वाली थी उस वक्त मुझे सिर्फ मिर्चें खानी होती थी। सिर्फ मिर्चें। अच्छा, what are your kids' favorite way to spend time with them? So हमारा क्या होता है कि if you're shooting और हम शूटिंग से वापस घर आते हैं around 10:30, which is late। Yeah. मगर फिर खैर वो दोनों आते हैं अंदर, फिर वो लेट जाते हैं हमारे। एक बीच में बेटी होती है, इस साइड पे बैठा होता है और फिर वो कहते हैं लेट्स प्ले ट्राई नॉट टू लाफ चैलेंज। ओके, फिर हम वो खेलते हैं। फिर वो सबसे पहले बेटी हंस जाती है। हाँ, और फिर उसको अपना K-pop पे डांस करके दिखाना होता है। तो वो एक पूरा एक सेशन होता है हमारा कोई 10-15 मिनट्स का, और फिर फाइनली सो जाते हैं जाके, जबरदस्ती उनको सुलाना पड़ता है। That's so sweet. Yeah. I think it's very cute too. अभी बच्चे इतने बड़े हो गए फिर भी they come in your room and they're like hugging. हाँ, नहीं every day वो तो must है। Are you a hugger? हाँ, a lot. Yeah. मैं तो I'm a big hugger. And do you cry like ज़्यादा रोना आ जाता है या रोती नहीं? नहीं, मुझे रोना नहीं आता। But अस्सलाम वालेकुम, क्योंकि my middle name is रोना। अच्छा नहीं, हाँ नहीं, मुझे कुछ छोटी छोटी बातों पे नहीं आता। हाँ, कोई बड़ी कोई चीज़ हो जाएगी तो ऑफ कोर्स आएगा ही, लेकिन नहीं, मुझे फजूल में रोना नहीं आता। Guys, she's such an inspiration. ना रोना आता है, इतनी काम है, ये बहुत ज़्यादा एक अच्छा स्टैंडर्ड सेट हो गया है मदरहुड का। ये थोड़ा अनरियलिस्टिक है, but she's doing it all. Thank you so much. We have a beautiful gift hamper for you from Can Baby. Thank you so much. And इतना बड़ा और इतना भारी। इसमें डाइपर्स है काफ़ी। डाइपर्स तो मेरे अब किसी काम के नहीं है। हाँ, बट वो आप फिर मुझे दे जाना। अच्छा चलो, सैनिटरी नैपकिन है ना ये, अभी तो नहीं, मैं इसको संभाल के रखूंगी नेक्स्ट ईयर शायद। Yes, inshallah. Hopefully everything works out well for you. You're doing a brilliant job. And so are you. Thank you. I mean, with the little one and doing all of this, it's just brilliant. I try. Keep it up. Thank you so much.
Guys, I hope you guys enjoyed this show. It was very informative. All the mothers out there जिनके बच्चे हैं इस एज में, उनके लिए तो बहुत मजे का होगा. Please like, subscribe and share and hit the bell icon अगर बाकी episodes की भी update चाहिए. और बाकी जाएं, खाएं, पिए, ऐश करें. Bye bye. बाकी के एपिसोड्स के लिए क्लिक हियर. बाय.